Hello, my name is Shweb and welcome to Front-End Web Development course. This is HTML lecture number 6. So the topic we will cover in this video are inline and block level elements. Then we will see the div element. Then we will see the HTML5 layout elements in which we will discuss about header, nav, section, footer, etc. So without wasting time, let's get started. So this is the folder I'm using and I'm opening this folder in VS Code. It takes a little bit of time depending on the speed of your PC. Alright, so it's open now, and this is the layout structure we will discuss after some time. So it's taking a little bit time, so I've opened that. Right. Alright, so this has opened now, and alright, so it's open. So let's create a new file. That's Dude6. Why it's taking so long? Alright, so it's open now. Alright, so let's add a boilerplate. So let's add a title, and the title for this video is inline and block level elements. Alright, avoid typos please. Alright, so let's save it and open it with live server so that whenever I made a change you will see it on a web page. So I haven't added anything in the body section, so it's not displaying anything, but I have added the title. So this is the title I have added. Alright, so let's get started. So my topic is inline and block level elements. So let me tell you the difference between inline and block level, or let's see what inline elements are. So I have discussed anchor tag in the last video, so let's just add a few tags so that I can show you something on the web page. So let's just add a heading tag, paragraph tag. Alright, so if I just show you what it is by just adding a style, that is border. Okay, so alright, so border 1px. Okay, so alright, so I did that just to let you know. So this is a block level element. Heading from h1 to h6 are block level elements. और ये block level elements क्यों हैं? क्योंकि block level elements की जो quality है वो ये होती है कि block level elements पूरी की पूरी width को जो है वो ले लेते हैं वेब पेज की, और जो भी नया एलिमेंट आएगा वो स्टार्ट होगा नेक्स्ट लाइन से. ये होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट. यानी मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर बॉर्डर लगाकर, इसी तरह मैं पैराग्राफ पे ही बॉर्डर लगाता हूँ. So I just copy this thing, style tag. I just copy this attribute
and I'll paste it in paragraph so that you know the difference. और मैं यहाँ पर एक एंकर टैग भी लगा लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं एक एंकर टैग भी लगा लेता हूँ विथ href वैल्यू हैश, क्योंकि मुझे इसको कहीं राउट नहीं कराना, तो मैं इसको सिंपल हैश की वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड आई रिपीट दिस बॉर्डर इन द anchor tag as well. All right, so I just copy it down and just add this styling here. So now if you see, oh sorry, anchor tag में कुछ ऐड नहीं किया मैंने। All right, so now all the elements have text. So if you just see कि H1 पे जो बॉर्डर लगा हुआ है, हालांकि H1 का कंटेंट तो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बट H1 ने पूरा की पूरी विड्थ जो मेरे पेज की है वो इसने ले ली है। और ये बॉर्डर लाइन मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको मैं ये दिखा सकूं कि इसका कंटेंट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, बट इसने पूरी की पूरी लाइन मेरी जो है वो ले ली है। और अब जो नया एलिमेंट आया P, वो इसने नई लाइन से स्टार्ट किया। और P का भी आप देखें, अगर P का भी पैराग्राफ का भी जो है वो जितना भी कंटेंट है वो तो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, बट स्टिल इसने पूरी की पूरी विथ ले ली है। और जो नया एलिमेंट आया है उसको इसने स्टार्ट किया है न्यू लाइन से, जबकि एंकर टैग में ऐसा नहीं है। इफ़ आई जस्ट ऐड अनदर एंकर टैग और मैं बटन लगा लेता हूँ लेट्स से, तो मैं बटन अगर लगा लेता हूँ लेट्स से, और यहाँ पर लिख देते हैं लेट्स से कि दिस इज़ बटन। ऑलराइट, सो बटन लगा दिया मैंने और इस पर भी स्टाइलिंग वही सेम रख लेते हैं हम। ठीक है, ये स्टाइलिंग जस्ट इसलिए आप लोगों को बताइए ताकि आप लोगों को फ़र्क समझ आ जाए कि बॉर्डर मैंने जो दिया है वो कहाँ तक जा रहा है। मैंने कोई बॉर्डर की लेंथ या विड्थ कोई स्पेसिफाई नहीं की हुई कुछ भी। ठीक है, कुछ CSS पीछे नहीं की हुई, जस्ट ये इसकी डिफ़ॉल्ट है। और जस्ट स्टाइल का एक एट्रीब्यूट लगाया है, व्हाट्स दिस, ये कुछ गलत कर दिया क्या? वेट, आई थिंक आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। मैंने डबल क्लाइम कर दिया, सॉरी। और टाइमिंग इसको मैं ऑफ करता हूँ। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। एरर कहाँ पे, समझ गया मैं। सो मैंने इसको क्लोज नहीं किया था, इस वजह से ये एरर कर रहा था। सो नाउ इफ आई जस्ट आई सेव्ड इट एंड इफ आई रीलोड इट, सो इफ यू जस्ट सी कि ये मेरा लिंक का है। ठीक है, ये मेरा लिंक का एलिमेंट है। इस पे बॉर्डर देखें, यहाँ पे आके ख़त्म होगी, जहाँ इसका कंटेंट ख़त्म हो गया वहीं पे ये इसका बॉर्डर भी ख़त्म हो चुका है। ये मेरा बटन है, बटन का भी जहाँ पर कंटेंट ख़त्म हो गया वहीं बटन का बॉर्डर भी ख़त्म हो गया। और एंकर टैग के आगे ही इसने बटन को भी ऐड कर दिया। यहाँ मैं चाहूँ तो पूरी लाइन में जितने बटन आ सकते हैं मैं उतने बटन लगा सकता हूँ। मैं जितने चाहे उतने एंकर टैग लगाऊंगा, जितने इस विथ में आ सकते हैं एंकर टैग, वो सारे एंकर टैग यहाँ पे आएंगे। जबकि अगर मैं पैराग्राफ के साथ ऐसा करने की कोशिश करूँगा तो पैराग्राफ ऐसा नहीं होने देगा, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और जो एंकर टैग और बटन टैग हैं ये इनलाइन एलिमेंट है। तो इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के दरमियान में जो डिफरेंस है आई थिंक अब क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, बाकी मैंने रिकैप पोर्शन में इसकी डेफिनेशंस भी डाल दी हैं, तो आप लोग वीडियो को पोस्ट करके जब मैं रिकैप पोर्शन पे आ रहा हूँ वीडियो पे तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, सो वो टाइम बिंग आई थिंक के इनलाइन और ब्लॉक के दरमियान जो डिफरेंस है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इवन रिकैप में इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। इसको फर्दर स्टडी करना चाहें तो आप W3 स्कूल्स रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द न्यू एलिमेंट दैट इज़ द डिव एलिमेंट। अब ये डिव एलिमेंट क्या करता है, सो इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि हम जब पेज कोई भी क्रिएट करते हैं तो हम उसमें सेक्शंस बनाते हैं। ठीक है, लेट्स से कि मैं एक चाहता हूँ कि मेरे पास एक पोर्शन हो पर्टिकुलरली जिसके अंदर हेडिंग भी हो, उसके अंदर पैराग्राफ भी हो, उसके अंदर एक एंकर टैग भी हो। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मैं इसको जो है वो उठा लेता हूँ फॉर टाइम भी। ठीक है, और अब चूंकि मुझे बॉर्डर की ज़रूरत नहीं है
स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको जस्ट पहले तो कॉपी कर लेता हूँ, सही है, एंड देन मैं इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं इसको पुराने वालों को तीनों को कमेंट आउट कर देता हूँ, जस्ट टू, इन तीनों को लेट से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इन तीनों में से जो स्टाइलिंग है वो भी हटा देता हूँ, क्योंकि अब मुझे स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। सो मैं मल्टी कर्सर कर रहा हूँ। आप अगर जो है विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं तो मल्टी कर्सर करने के लिए आपने क्लिक करना है और साथ में ऑल्ट की प्रेस करके दूसरा क्लिक करना है, तीसरा क्लिक करना है, और आपके तीनों कर्सर वर्क करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू सी, मैंने जस्ट जो है वो 3 कर्सर लेकर और इजीली जो है वो इसको रिमूव कर दिया। और अब मैं जब इसको रन कराऊंगा अपने ब्राउज़र में, सो इफ़ यू सी, अब बटन ऊपर है, क्योंकि बटन ऊपर ही था। अब ये तीन चीज़ आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है वो इसका एक सेक्शन बना लूँ और उस तीनों को इस सेक्शन के अंदर, यानी एक ही दफ़ा मैं स्टाइलिंग करूँ। और जैसे एक होता है ना कि पेरेंट, अभी जैसे आपको मैं बताया था, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये HTML है, तो इस HTML के जो दो जो हैं वो आपके जो चाइल्ड हैं वो हेड है और बॉडी है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी जो है उसके भी मज़ीद अंदर जो है वो एक कोई एलिमेंट हो, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हो। तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं करूँगा, मैं यहाँ सिंपल एक डिव लगा दूंगा। और डिव क्या कर देगा, डिव एक्चुअल में इसको एक सेक्शन की तरह दे देगा, ठीक है। तो मैं अपने बाकी एलिमेंट्स को डिव के अंदर डाल देता हूँ। इसका वर्क क्या होता है या ये कहाँ यूज़ होता है, ये मोस्टली आपको स्टाइलिंग में बड़ा हेल्पफुल होता है। जब आप लोग सेक्शंस बना रहे होते हैं, पेज का लेआउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बड़ा फ़ायदा दे रही होती है। इवन अगर आप रिएक्ट टैब यूज़ करेंगे तो वहाँ पर भी जो रेंडर की कमांड यूज़ होती है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज़ द डिव एलिमेंट, क्योंकि वो एक वक्त में एक ही एलिमेंट को जो है वो रेंडर कर सकती है पेज पे। तो वहाँ हम डिव को यूज़ करते हैं। और डिव को यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि जब हम डिव यूज़ करते हैं एक दफ़ा, तो उस डिव को यूज़ करने से हमारे पास एक ही डिव के अंदर हम लोग एक ही एलिमेंट बताए रेंडर कर रहे होते हैं, बट उस एक रेंडर एलिमेंट की वजह से हम जो है वो बहुत सारे एलिमेंट्स को उस डिव की मदद से अंदर रेंडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अब सिंपल अगर देखा जाए तो HTML का एक एलिमेंट है जस्ट ये डिव। अब इस डिव के अंदर डिफरेंट एलिमेंट, अब बाज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि यार ये तो कुछ क्या होगा, क्योंकि पेज पे तो ये डिव एलिमेंट आपको ऐसे शो नहीं होगा। ये देखें, अभी कुछ भी नहीं हो रहा था। मैंने आई गेस क्या कर दिया, मैंने कॉपी कर दिया, सॉरी, मुझे कट करना था, मैंने कॉपी कर दिया, सॉरी। सो इफ़ आई जस्ट शो यू, तो आप बोलेंगे ये तो पहले जैसे ही डिस्प्ले, इसमें फ़र्क क्या आया। तो फ़र्क कहाँ आया, फ़र्क इसको मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं जस्ट यही स्टाइल वाला जो एट्रीब्यूट है जो मैंने यहाँ कॉपी किया हुआ है, फॉर टाइम बिंग मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं इसको। तो इफ़ आई जस्ट कॉपी पेस्ट इट हेयर, सो इफ़ यू नाउ सी, तो ये पूरे के ऊपर क्या आ चुका है, एक इस तरीके से बॉर्डर आ चुका है, विच इंडिकेट्स कि अब ये जो H1 है ये किसी एलिमेंट के अंदर है, ये पैराग्राफ है ये भी किसी के अंदर है, ये एंकर टैग है ये भी किसी के अंदर है। यानी अब ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर मजीद ब्लॉक लेवल और इनलाइन एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो कि डिव में होती है, डिव मोस्टली जो है वो सेक्शनिंग के लिए होती है आप लोग के पास। जब आप चाहते हैं कि आपके पेज पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं तो आप लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम डिव इसके लिए यूज़ होता है। अब डिव के अलावा जो एक एलिमेंट आता है वो है स्पैन का एलिमेंट, ठीक है। स्पैन का एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट है, और जिस तरह हम BR और HR वगैरह यूज़ करते हैं इसी तरीके से, सॉरी, जिस तरह हम बोल्ड और इटैलिक यूज़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को जो है वो करने के लिए टारगेट, लेट्स से कि अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिव के अंदर, या लेट्स से डिव को छोड़ देते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स से एक नॉर्मल पैराग्राफ से ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ पैराग्राफ, ठीक है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, लेट्स से मैंने दिस इज़ अ पैराग्राफ लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टाइलिंग पूरे के पूरे पैराग्राफ टैग पे ना हो, जस्ट इस स्टाइलिंग वाले पार्ट पे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस स्टाइलिंग को या इस पैराग्राफ को एक स्पैन के टैग के अंदर डाल दूँगा। तो स्पैन का मैं टैग यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड क्लोज भी। नॉर्मली HTML टैग्स की तरह ही ओपन क्लोज, ये तो शायद अब आप लोग अब तक तो समझ गए होंगे कि ओपनिंग क्लोजिंग किस तरीके से होती है, ठीक है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ पर, सही है, और इसको मैं कुछ लेट्स से कहता हूँ कि चलें इसको ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है।
इसको हटा ही देते हैं। ठीक है, अब बाज़ाहिर तो आप लोगों को लग रहा होगा कि कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, एंड ऑब्वियसली ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है डिव पे, ठीक है। सो इफ मैं जस्ट इस लाइन को उठा के और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेट्स से कि मैं इस पेन के अंदर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो अब क्या होगा, अब जो ये बॉर्डर है ये मेरा पर्टिकुलरली जस्ट इस पैराग्राफ के ऊपर आ गया खाली, ठीक है। तो जब मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर जो है वो एलिमेंट के अंदर भी कोई चीज़ ऐसी पर्टिकुलर है जिसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो वहाँ मैं स्पैन का एलिमेंट लगाता हूँ, ठीक है। अभी मैंने ई एम वगैरह नहीं बताया वहाँ, उससे भी वो भी बताऊँगा मैं इन फ्यूचर, तब आपको थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं स्पैन का एलिमेंट लगा के इसमें ई एम लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। सो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अब हम HTML। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे लेआउट्स को, तो लेआउट में थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ जो मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिए ओपन करके रखा था। सो इफ़ यू सी दिस लेआउट ना, तो हर पेज वेब पेज में ये मोस्टली आपको चीज़ें मिल जाती हैं। एक हेडर होता है हर पेज में, एक नेव बार होता है, ठीक है। अगर आप इस पेज को ही देखें जो मैंने अभी इसको ओपन किया हुआ है, तो इफ़ यू जस्ट सी कि ये हेडर है इस पेज का, ये पूरी लाइन हेडर है, ये इसकी नेव बार है, ठीक है। ये असाइड पोर्शन है, ये साइड, ठीक है। ये इसका कंटेंट है, ठीक है। ये इन्होंने पेज लेआउट भी बताया हुआ है, देखें, इफ यू जस्ट सी दिस थिंग, ये असाइड पोर्शन है, ठीक है। ये आपका पेज का मेन है, आर्टिकल भी आता है इसके अंदर सेक्शन भी आता है, ठीक है। इसके अंदर ये हेडर है, ये फुटर है। तो मोस्टली वेबसाइट में हेडर फुटर आपको नॉर्मली मिल ही जाता है, ठीक है। इस तरह नेव बार भी मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में आपको मिल जाता है। देन आपके पास सेक्शन का जो पार्ट है, इसमें आप, ये जस्ट एक पार्ट नहीं होता है, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका ये आर्टिकल होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने रीड करना है, सही है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हेडर क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट का हेड होता है, हेड जो यानी कि जो बिल्कुल टॉप होता है, समटाइम्स ये हेडर फिक्स होता है, समटाइम्स ये हेडर जो है वो स्क्रोलेबल होता है, ठीक है। ये CSS के थ्रू करते हैं, जो भी करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा CSS पार्ट में, ठीक है। नेव क्या होता है, नेविगेशन बार, यानी कि लिंक करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, जैसे जिस मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नेक्स्ट पेज पर लेके जाएगा, या जिस तरीके से हमने एंकर टैग पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पर हम लेके जाते थे, तो वो यूजुअली हम नेव बार में यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। हम ये जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस हैं, ये HTML ने हमें प्रोवाइड तो किए हुए हैं। अगर हम चाहें, अगर हम लेट्स से ये सब चीज़ें यूज़ ना भी करें, तो हम जस्ट यहाँ पर डिव यूज़ करके उस पर आईडी लगा के हेड की या क्लास लगा के हेडर की, ठीक है, हम यूज़ कर सकते हैं इसको। ज़रूरी नहीं है आप हेडर टैग ही यूज़ करें, बट इट्स प्रेफरेबली अलाउड कि हम यहाँ पर हेडर टैग यूज़ करें। उसकी वजह यह है कि जब ये हमारे पास जब साइट जो है वो उस पर इंडेक्सिंग होती है साइट पे गूगल के थ्रू, तो ये चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं हमारे पेज को एक अच्छी रीच, या हमारे वेब पेज को एक अच्छी मतलब रैंकिंग देने के लिए सारे टैग्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप डिव भी अगर लगा लेंगे तो इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। यहाँ भी डिव लगा सकते हैं विद एन आईडी ऑफ हेडर, ठीक है। यहाँ भी आप डिव लगा सकते हैं विद एन आईडी ऑफ नेव बार या नेव, ठीक है। यहाँ भी आप मजीद एक हेड डिव लगा सकते हैं, यहाँ डिव लगा सकते हैं, फुटर का डिव लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिव्स यूज़ कर सकते हैं विद डिफरेंट आईडीज़, बट इट्स नॉट प्रेफरेबल, ठीक है। प्रेफरेबल ये है कि आप अगर पेज में डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस है तो आप सेक्शन का टैग यूज़ करें। पेज में अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट आपके हेडर है तो हेडर का टैग यूज़ करें। इससे आसानी क्या होती है कि मैं जस्ट हेडर टैग को टारगेट करके CSS की प्रॉपर्टीज़ डाल सकता हूँ, ठीक है। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं डिव के अंदर जो आईडी है उस आईडी को टारगेट करके और जो है ना वो इस पे जो है वो सारी पोजीशनिंग वगैरह सेट करूँ। मैं जस्ट हेडर टैग को टारगेट करूँगा, इसकी पोजीशनिंग इसकी सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये लेआउट में एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आप लोगों को बताना जो है वो ज़रूरी समझा, ठीक है, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए। आई थिंक यहाँ तक इस टॉपिक को हम यानी कि कवर कर चुके हैं। जो कुछ उसको एक थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और मेरे ख्याल में आज इस वीडियो में मैं मज़ीद चीज़ें कवर नहीं करूँगा। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने कवर करनी थी इस वीडियो में। अब आप एक छोटा सा रिकैप देख लें, आप लोग वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल के साथ लिख दी हैं, ये वही डेफिनेशंस हैं जो मैंने यहाँ पे थी, ठीक है। आप इस लिंक को भी जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये लिंक मैं आपको जो है वो कमेंट में दे भी दूंगा, आप उसको मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट में अगर कोई आपका सवाल है, लेट से आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट के थ्रू। और इसको आप थोड़ा सा मैं थोड़ी देर के लिए इसको रख देता हूँ तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इनलाइन एलिमेंट की डेफिनेशन में लिख दी है कि इनलाइन एलिमेंट डज नॉट स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन, इन इनलाइन एलिमेंट ओनली टेक्स अप एज मच विथ एज द कंटेंट इन द एलिमेंट टेक्स। और जो उसकी एग्जांपल है इनलाइन एलिमेंट्स की वो स्पैन एलिमेंट है जो अभी मैंने बताया,
एंकर टैग जो अभी बताया, बटन जो अभी बताया, इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। यानी अगर जब आप इमेज यूज़ करने लगे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी इमेज जो है वो आपके टेक्स्ट पे प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। तो अलाइनमेंट का इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो इमेज का जो टैग है उसको भी थोड़ा सा आपने एहतियात से यूज़ करना है। अच्छा, पर ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो कि न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और ये उतनी ही विथ लेते हैं, ये पूरे पेज की विथ को ले लेते हैं, ठीक है, और नए एलिमेंट को नए लाइन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल है ब्लॉक लेवल की या ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स की जो एग्जाम्पल है उसमें H1 से लेकर H6 तक तमाम हेडिंग्स जो हैं वो ब्लॉक लेवल हैं। इसके अलावा पी टैग यानी पैराग्राफ टैग, इसके अलावा लिस्ट आपकी तमाम जो है वो आपकी जो है वो ब्लॉक लेवल है। आप चाहे यूएल लगाएं चाहे ओएल लगाएं, वो आपका जो है वो लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट आप डालते हैं एल उसका जो कंटेंट होता है हमेशा वो पूरी विथ कवर करता है। इसके अलावा डिव टैग जो मैंने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। और डिव टैब की थोड़ा सा मैंने बताया है कि डिव टैग जो है वो लेआउट के लिए या ग्रुपिंग के लिए यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसके अलावा ये जो डेफिनेशंस हैं हेडर की, ये सारी मैंने आपको अभी जो है वो दिखा भी दी हैं और आप लोगों के लिए छोड़ भी दिए हैं, आप इसको थोड़ा सा रीड कर सकते हैं, ठीक है। सो डैट यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। और डोंट वरी, जब हम लोग अपने थियोरेटिकल पार्ट से जब हम लोग प्रैक्टिकली जो है वो वेबसाइट्स को बिल्ड कर रहे होंगे तब मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहा हूँ, तो वहाँ आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो दूर हो जाएंगी। बट फॉर टाइमिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती है, इसकी रिकॉर्डिंग एडिटिंग वगैरह में, तो मेक श्योर कि जब आप वीडियो देखते हैं तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। और लाइक करें वीडियो को ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और काम करने के लिए और एफर्ट करने के लिए और आप लोगों के लिए जो है वो अच्छी से अच्छी चीज़ें लाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों ने जो है वो अपने दोस्तों से शेयर करनी है, उन लोगों से शेयर करनी है जो आपकी नज़र में आपको लगता है कि वो ये कंटेंट शायद कंज्यूम कर सकते हैं या उनके ही काम आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको शेयर करनी है और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके जब भी वीडियो अपलोड हो, या आप लोग को जो है वो इसके बारे में कोई चीज़ कोई अपडेट आती है तो आप लोग को इसके बारे में अपडेटेड आप लोग रहें, ठीक है। सो मेक श्योर ये चारों चीज़ आप कर लें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच गाइस।